Hello students, welcome to the Organism and Population Part 3. So आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या होता है. So let's start part 3 of this chapter. अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 अगर इस चैप्टर का नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट यू वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 and then you can continue with this part. So life history variation. What is life history variation? Life history variation. Now, we know that the population of the microbes that have evolved to maximize their reproductive fitness, and this is called as Darwinian fitness with higher R value. So there is variation in the life history. Life history में variation है. Why that variation is there? So that the population should have maximum R value. इसी को हम कह रहे हैं life history variation. So how to define it? We can say that population evolve to maximize their reproductive fitness. This is called as Darwinian fitness that is high R value. इसी को हम कह रहे हैं Darwinian fitness with higher R value. Now, what are the strategies? Strategies क्या है to maximize the reproductive fitness? Let's talk about the strategies. What are the strategies? So strategy 2, to maximize reproductive fitness. First strategy is breeding habit. Breeding habit में क्या है? What is there in the breeding habit? In the breeding habit, some organisms they breed only once, we know. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं
एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम लोग। साल्मन फिश का एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। Some organisms breed only once. Only once in their lifetime. एग्जाम्पल देंगे हम इसमें। पैसिफिक साल्मन फिश, साल्मन फिश, और हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें बैम्बू का। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स। Organisms breed many times. बहुत बार ब्रीड करेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। तो क्या है, ये वेरिएशन है लाइफ हिस्ट्री में। देखिए, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस कुछ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं ब्रीडिंग बाय ब्रीडिंग बंस, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं इस रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बाय ब्रीडिंग मैनी टाइम्स। सो दिस इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। इसी को हम कह रहे हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है ये। ओके, सेकंड, number and size of the offsprings. Number and size of offsprings. Now few organisms, they will produce large number of progeny, and large number of progeny means their size will be small, whereas कुछ organism क्या होंगे, वो नंबर offsprings का नंबर कम होगा लेकिन उनका साइज जो है बड़ा होगा। So again this is the variation in the life history so as to, किसके लिए है ये, so as to obtain the Darwinian fitness या reproductive fitness को obtain करने के लिए। इसमें हम एग्जाम्पल जो है हम देते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, some produce large number of small progeny. Large number of small progeny. राइट। एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे हम दे सकते हैं, किसका एग्जाम्पल देंगे हम इनमें, ऑयस्टर्स एंड pelagic fish. And pelagic fish. Okay, whereas some produce small number of large progeny.
लार्ज प्रोजेनी। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा बर्ड्स एंड मैमल्स। We have the examples. So again this is to obtain, किसके लिए है ये? This is to obtain the मैक्सिमम डार्विनियन फिटनेस को ऑब्टेन करने के लिए ये होता है। दिस वेरिएशन इज देयर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। लेट्स टेक अप द population interaction. So here we go with population interaction. What is population interaction? Population interaction क्या है? Population interaction this is very important topic. Population interaction. Population interactions. Suppose we are having species A. Species A and species B. Interaction is taking place between species A and species B. Suppose both species A and B, दोनों species जो हैं they are getting benefit from each other. They are interacting, दोनों को आपस में benefit मिल रहा है. This type of interaction is known as, name of the interaction will be mutualism. Both the species they are at harm. Minus means दोनों को नुकसान हो रहा है. That interaction is known as competition. Okay, one species it is getting benefit and another is at loss. जिसको benefit हो रहा है उसको हम कहेंगे predator और जिसको नुकसान हो रहा है उसको हम कहेंगे prey. इस तरह के इंटरेक्शन को हम कह देंगे predation. नेक्स्ट इंटरेक्शन, एक स्पीसीज जो है उसको है बेनिफिट, दूसरी को है नुकसान, लॉस, माइनस. सो दिस species who is getting benefit is parasite, which is at loss is host. इंटरेक्शन को हम कहेंगे पैरासिटिज्म. एक स्पीसीज जिसको है बेनिफिट और दूसरी है न्यूट्रल, जीरो में न्यूट्रल. कमेंसलिज्म इसको कह देंगे हम, कमेंसलिज्म. एक स्पीसीज को है नुकसान, दूसरी है न्यूट्रल, इसको हम कहेंगे एमेंसलिज्म. Call it as amensalism. So let's take up these interactions one by one. Example के साथ हम लेते हैं इन interactions को. How these interactions are taking place. So first let's start with mutualism. Mutualism से हम start करते हैं first interaction. Okay, so mutualism क्या होता है? Mutualism, I hope this will be visible to you. म्यूचुअलिज्म, चलिए देखते हैं. नो
take a different color. Mutualism. Yes, this is a positive interaction, यानी कि दोनों स्पीसीज जो है उनको बेनिफिट होता है. एंड म्यूचुअलिज्म को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑब्लिगेट एसोसिएशन है. ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन है. ना इसमें इस रिलेशनशिप को वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. यस, बोल सकते हैं ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. यस, कह सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज बोथ द स्पीसीज दे आर गेटिंग बेनिफिट. तो सिम्बायोसिस है ये, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये. एग्जाम्पल देखते हैं म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल, very important examples. Lichens and second is mycorrhiza. Yes, lichens क्या है? Lichen is the symbiotic association between algae fungi. grade 11th में हमने पढ़ा है ये. Lichens क्या है? एसोसिएशन है ये एल्गी और फंजाई की. इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं. एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? फाइकोबॉइंट बोलेंगे. फंगल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? माइकोबॉइंट बोलेंगे. फाइकोबॉइंट क्या करता है? इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. माइकोबॉइंट कंपोनेंट क्या करेगा? माइकोबॉइंट कंपोनेंट विल हेल्प इन रिप्रोडक्शन. It will help in the absorption of the water and minerals. It will help in the absorption of water and minerals, and it will maintain the structure. Both are getting benefit from each other from this relationship. तो एसोसिएशन कैसी हो गई है? म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक एसोसिएशन. माइकोराइजा. माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ और एसोसिएशन बिटवीन रूट्स of higher plants, roots of higher plants and fungi. माइकोराइजा दो टाइप्स के पढ़े थे आपने. यस, 2 टाइप्स. कौन कौन से? एक्टोमाइकोराइजा. एक्टो mycorrhiza and endomycorrhiza. yes, एक्टोमाइकोराइजा मतलब क्या बोलेंगे इसको हम? एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल हम देंगे पाइनस की रूट्स के ऊपर. ऑन दी रूट्स, पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है. पाइनस इज जिम्नोस्पर्म. ऑन द रूट्स ऑफ द पाइनस फंगस इज देयर. विच फंगस? बोलेटस. बोलेटस सरफेस के ऊपर है ये. दैट्स एक्टोमाइकोराइजा. एंडोमाइकोराइजा इज नोन ऑल्सो नोन एज vascular or vascular mycorrhiza, VAM.
एग्जाम्पल हम इसमें देंगे ऑर्चिड्स प्लांट है, इसकी रूट्स के ऊपर ग्लोमस फंगस है और ये फंगस जो है पेनिट्रेट करता है deep into the vascular bundle, that is, it is endomycorrhiza. Endomycorrhiza means fungus hyphae will penetrate deeper into the vascular bundle. That's why it is endomycorrhiza or vascular mycorrhiza. So this is the symbiotic association between the roots of the higher plants and fungi. Right? So these are two examples of the mutualism. Now, children, प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म भी होता है. वी नो दिस थिंग दैट कैसे होता है. एग्जांपल देखते हैं हम लोग. प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल्स. प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म. क्या एग्जांपल देखें हम इसके. देखिए, जूफिली, एंड जूकोरी. जूफिली and जूकोरी are the examples of plant animal mutualism. Let's see जूफिली. What is जूफिली? इसको देखते हैं हम लोग. Plants needs animal for pollination. You know, zoophily. So plants need animals for pollination. For pollination, right? So zoophily. That is a zoophily. And so ये symbiotic association कैसी है, mutualism कैसे है ये? Because in return, what they are getting? In return, animals get reward. Animals को क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है. मे बी नेक्टर फूड की फॉर्म में मिलेगा. जूकोरी. एनिमल्स plants need help of animals for their, किसके लिए? For their seed dispersal. Yes, seed dispersal के लिए जूकोरी. यही मतलब हुआ जूकोरी का. What is जूकोरी? Plants need help of animals किसके लिए? For their seed dispersal. इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे जूकोरी. So when plant will get benefit because their seeds are being dispersed and animals they are getting food. So it is plant animal mutualism का example है. Okay. Now this, whenever there is interaction between the species, then what will happen, children? There may be a co-evolution. It is if it is an obligate association, because we are saying that in the mutualism or in the symbiotic association, it is a obligate association. So co-evolution भी species का साथ साथ में होता है. In your NCERT co-evolution दे रखा है NCERT के अंदर. So let's see, इसको हम देख. Let's understand this co-evolution with the help of the examples. Co mean together, साथ में. Evolution होना, co-evolution. ये in the obligate association. Obligate association में co-evolution होता है species का, जो species interact कर रही हैं आपस में.
लेट्स सी कैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं फिग एंड वास्प। आई थिंक दिस एग्जांपल वाज इन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में एग्जांपल आपने पढ़ा होगा ये। ओके, सो वास्प क्या करती है? वास्प ले, जो वास्प है ये अपने एग्स को, इट ले इट्स एग्स in the flowers of the plants, in the inflorescence of fig। ठीक है, यहाँ फिग क्या है देखिए, फिग प्लांट है, क्या नाम है इसका? फाइकस। और वास्प क्या है? वास्प इज इंसेक्ट। तो इंसेक्ट क्या कर रही है? ये अपने एग्स को ले कर रही है फाइकस में, फाइकस के इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज प्रोनुबा मॉथ। प्रोनुबा मॉथ एंड युक्का प्लांट। यहां पर भी ऐसे हो रहा है, मॉथ जो है वो एग ले कर रही है युक्का में। एंड थर्ड एग्जांपल इज ऑर्चिड्स एंड बीज। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। एंड दीज बोथ द स्पीसीज दे आर को इवॉल्विंग। दोनों स्पीसीज जो है वो इवॉल्व हो रही हैं टुगेदर। सो को एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस इन बोथ द स्पीसीज। ओके, ओके, लेट्स टेक अप दी को एवोल्यूशन का जो एग्जांपल दे रखा है। ऑर्चिड्स ओफाइरस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीट, एंड दिस एग्जांपल इज बीइंग गिवन इन आवर एनसीईआरटी। को एवोल्यूशन में ही ये एग्जांपल हम देखते हैं, को एवोल्यूशन में ही सूडो कॉपुलेशन का एग्जांपल। सूडो कॉपुलेशन, और इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीट। लेट्स टेक अप दिस एग्जांपल। किसमें हो रहा है ये? नाउ ऑर्चिड, ऑर्चिड का नाम है ओफाइरस। ओफाइरस, OPHRYS, सॉरी, ओफाइरस। इसको आप ओफाइरस, ऑर्चिड ओफाइरस। यहां पे क्या हो रहा है ऑर्चिड ओफाइरस के अंदर? दी फ्लावर्स, इसमें जो फ्लावर हैं ऑफ दिस ऑर्चिड, resemble female of कैल्पा इंसेक्ट। कैल्पा बी है ये। अब इसमें देखिए जो मेल कैल्पा है, मेल कैल्पा, मेल कैल्पा बी
क्या करेगी? It will comes near orchid flower, orchid ophrys orchid flower के पास आएगी and pseudo copulate और pseudo copulate करेगी, क्योंकि वो इसको अंडरस्टैंड करेगी एज अ फीमेल पेटल को ये मिस आइडेंटिफाई कर लेगी एज अ फीमेल कैल्पा बी, तो सूडो कॉपुलेशन होगा। इसी को, इस प्रोसेस को ही हम कह रहे हैं सूडो कॉपुलेशन और सेक्सुअल डिसीट, सूडो कॉपुलेशन और सेक्सुअल डिसीट, राइट? So this is very important example is given in your NCERT. So this is about the coevolution in some of the species. Now the next interaction की हम बात करते हैं, that is commensalism. 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 Commensalism में one species is getting benefit and other is at neutral. So organism जिसको बेनिफिट मिल रहा है organism which is benefited is called commensal. उसको हम क्या कहेंगे? commensal कहेंगे। and other species दूसरी जो स्पीसीज है is host, उसको हम होस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हम यहां लिख रहे हैं commensal means positive and host, यहां पे लिख रहा हूं host, host मतलब neutral. So let's see the examples. आइए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑर्चिड, ऑर्चिड commensal है। ऑर्चिड्स ये हैं एपीफाइट्स होते हैं, ये ऑर्चिड्स एपीफाइट देखा होगा आप लोगों ने। ऑन किसके ऊपर होते हैं ये? ऑन मैंगो ट्रीज के ऊपर होते हैं ये। फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल बार्नेकल्स ऑन वेल के ऊपर होते हैं ये। देन क्लाउन फिश commensal होगी, ये रहती है सी एनिमोन के बीच में, अमंग सी एनिमोन प्रोटेक्शन मिलता है और सी एनिमोन को न्यूट्रल है। एंड देन कैटल इग्रेट्स, कैटल इग्रेट्स ये बर्ड्स हैं। कैटल इग्रेट्स कहाँ होते हैं? ऑन कैटल्स। ये दे विल गेट फूड उनको मिलता है जब कैटल्स ग्रेज करते हैं तो, राइट। सो these are the examples of the commensalism. Now the next interaction is
अगली इंट्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग, अमेंसिलिज्म। लेट्स टॉक अबाउट अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो विक्टिम होगा और दूसरा जो होगा वो न्यूट्रल होगा। So, इसको हम कहेंगे इट इज विक्टिम विच इज एट लॉस, और दूसरा जो न्यूट्रल है दैट इज अमेंसल। ओके, सो हियर इन दिस इंट्रैक्शन, इन दिस अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म में क्या हो रहा है, अमेंसिलिज्म के अंदर organism which inhibit the growth of other organism, growth of other organism, that is called, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे अमेंसल। और अमेंसल जो है ये न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, फंगस है। सो इट इज इनहिबिटिंग, किसको इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा ये, स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, फर्स्ट। सेकेंड इज species of Streptomyces bacteria. Streptomyces, स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है, बैक्टीरिया है। अगेन 11th में पढ़ा था आप लोगों ने, इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया। ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया। So this is about the amansilism. Now next interaction is parasitism. So let's take up parasitism. Yes, parasitism. So in parasitism, in this interaction, one species at loss में होगी उसको कहेंगे होस्ट, और जो बेनिफिट ले रही है उसको हम कहेंगे पैरासाइट। पैरासाइट को बेनिफिट है, लॉस जिस स्पीसीज को हो रहा है दैट इज होस्ट। Now we know that the
पैरासाइट्स जो दो टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स टाइप्स। दो टाइप्स के पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो फीड करते हैं, यस, कौन से होते हैं? एक्टो मीन्स ऑन द सरफेस, सो दे फीड ऑन, एक्टोपैरासाइट्स क्या करते हैं? दे फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट। एंडो कौन से होंगे? दे लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी, इनसाइड द होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल एक्टोपैरासाइट्स का देखिए, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या है? प्लांट है, इट इज ऑल्सो नोन एज अमरबेल बोलते हैं इसको हम। कस्क्यूटा में ये ट्रीज के ऊपर है पैरासाइट, और इसके अंदर रूट्स होती हैं, उन रूट्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टोरियल रूट्स। ऑस्टोरियल रूट्स होती हैं इसके अंदर, कस्क्यूटा के अंदर, जिनके थ्रू ये पैरासाइट रहता है प्लांट्स के ऊपर। और एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं हम, लाइस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, टिक्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं एक्टोपैरासाइट्स में। एंडोपैरासाइट्स में एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम दे रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट व्हिच कॉज मलेरिया। और लिवर के ऊपर और आरबीसी के ऊपर ये पैरासाइट रहता है, तो इट इज एंडोपैरासाइट। नाउ फॉर द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, dear students, these organisms they are having some adaptations. पैरासिटिक फॉर्म में रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। So what are those adaptations? क्या क्या adaptations हैं वो? Let's take up those adaptations. So adaptations by parasites. Adaptations by parasites. First, पैरासाइट्स जनरली क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स को लूज कर देते हैं, तो लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, देन लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, then presence of suckers, then they are having complex life cycle, complex life cycle. These are the adaptations which parasites they are having. Now one very important topic is being given in your NCERT under the heading of brood parasitism. You can refer your NCERT please. ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? NCERT में एक बार आप रेफर कर लीजिए, व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, क्या होता है ये ब्रूड पैरासिटिज्म? देखिए NCERT में एग्जांपल दे रखा है इसका, यस,
क्या एग्जाम्पल है इसमें? देखिए, कुकू बर्ड, कुकू बर्ड ये क्या करती है? कुकू बर्ड lays its eggs in the nest of crow. और जो क्रो है, क्रो क्या करेगा? क्रो टेक केयर करेगा, क्रो टेक्स केयर द eggs of cuckoo. Okay, so this is known as the brood parasitism. इसको हम कह रहे हैं ब्रूड पैरासिटिज्म. क्रो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, टेक केयर करेगा. दिस इज नोन एज द ब्रूड पैरासिटिज्म. सो दिस इज अबाउट द पैरासिटिज्म. सो ये पैरासिटिज्म के बारे में हो गया. नाउ द नेक्स्ट इंटरेक्शन इज कंपटीशन. कंपटीशन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंटरेक्शन. वी हैव लेफ्ट विद कंपटीशन एंड प्रीडेशन. कंपटीशन और प्रीडेशन के बारे में जल्दी से कर लेते हैं हम लोग. व्हाट इज कंपटीशन? चलिए, कंपटीशन क्या है, किसको कहेंगे हम कंपटीशन? कंपटीशन कैन बी टू टाइप्स. दो टाइप्स का कंपटीशन हो सकता है बच्चों. आइए, कंपटीशन इंटरस्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक. कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान है. कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान है. दो टाइप का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंटर स्पेसिफिक. इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? बिटवीन सेम स्पीसीज, बिटवीन सेम स्पीसीज. इंटर स्पेसिफिक क्या हुआ? बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज. दिस सेम स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, प्लीज रिमेंबर, दिस विल बी मोर सिवियर. ज्यादा सिवियर होगा ये. नाउ कंपटीशन कैन बी जो कंपटीशन होता है, इट कैन बी. यहां पे कंडीशन देखते हैं हम लोग. कंपटीशन कैन बी, फर्स्ट देखिए, बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में हो सकता है ये, और अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में हो सकता है. जैसे हम इसमें बिटवीन फ्लेमिंगोज एंड फिशेस, बिटवीन flamingos and fishes.
कहाँ पे हो रहा है? इन साउथ अमेरिकन लेक। अमेरिकन लेक के बीच में हो रहा है। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है when resource is limited, when a resource is limited or unlimited, then also the competition will take place. So this competition can take two forms. जब ये competition होगा competition can take, दो फॉर्म ले सकता है ये कंपटीशन जो होगा। देखिए कौन कौन सी फॉर्म ले सकता है। एक है कंपटीशन एक्सक्लूजन एंड सेकंड इज कंपटीशन कोएग्जिस्टेंस। competition coexistence, competition exclusion, this was given by Gauss। ये जो कंसेप्ट था ये given by Gauss। So what he said that superior species eliminate the inferior species, exclusion। सुपीरियर स्पीसीज क्या करेगी? सुपीरियर स्पीसीज एलिमिनेट कर देगी, सुपीरियर स्पीसीज eliminates the species eliminates the inferior species। एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। देखिए एग्जाम्पल्स में सुपीरियर स्पीसीज यहां पे हम लिखते हैं एंड देन inferior species। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यस क्या होगा फर्स्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन बताइए। फर्स्ट एग्जाम्पल बेलानस। बेलानस है सुपीरियर बार्निकल्स, ये इंफीरियर स्पीसीज कैथामेलस। ये इंफीरियर स्पीसीज है, इसको उन्होंने एलिमिनेट किया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम गोट। कहाँ का एग्जांपल है ये? गैलापैगोस आइलैंड का एग्जांपल है। गैलापैगोस आइलैंड में इन्होंने एलिमिनेट कर दिया किसको? एबिंगडोन टॉर्टिस को, बिकॉज ऑफ गोट्स आर हैविंग सुपीरियर ग्रेजिंग कैपेसिटी। एबिंगडोस टॉर्टिस को। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं पैरामीशियम ऑरिलिया। पैरामीशियम ऑरिलिया ने एलिमिनेट कर दिया पैरामीशियम कॉडेटम को।
एलिमिनेट कर दिया। सो दिस इज कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको हम कह रहे हैं कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंड इज कंपटीशन कोएग्जिस्टेंस। लेट्स टेक अप सेकेंड case. Second, we have competition coexistence. This concept was given by MacArthur. MacArthur ने ये concept दिया। So competition coexistence means there is resource partitioning. Resource partitioning. Resource partitioning होगी means resources are divided and used for coexistence. Resources की sharing होती है। Example देखते हैं हम इसमें। 5 closely species of 5 closely related species of 5 closely related species of warblers. सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं डार्विनियन फिंचेस। डार्विन फिंचेस जो थी, अगेन उन्होंने भी ट्रीज के डिफरेंट लेवल्स में रिसोर्स को शेयर किया, राइट। नाउ द एविडेंसेस ऑफ कंपटीशन में इन आवर एनसीईआरटी दे हैव गिवन competition release. What is competition release? एनसीईआरटी में दे रखी एक टर्म दे रखी है हमारे पास, कंपटीशन रिलीज क्या है? कंपटीशन रिलीज, here they have given example of Connell's elegant field experiment. यहां पे क्या किया था? कॉनल फील्ड एक्सपेरिमेंट ने क्या किया? दे हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में ये ऑब्जर्व किया गया दैट सुपीरियर बार्नेकल बैलानस जो डोमिनेट करते थे वहां पर, इंटरटाइडल एरियाज को डोमिनेट कर रही थी ये स्पीसीज, एंड इट एक्सक्लूड्स दीज स्मॉलर बार्नेकल्स कैथामेलस from that area. So कॉनल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट ने ये देखा कि रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में लार्ज एंड कंपेटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल्स बैलानस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरियाज एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्नेकल कैथामेलस फ्रॉम दैट एरिया। ठीक है, तो जब सुपीरियर स्पीसीज को अगर वहां से अगर हम हटा देंगे तो क्या हुआ? इट इज फाउंड दैट, ये देखा गया वहां पर, a species whose distribution is restricted to a smaller geographical area because of the presence of the competitively superior species, it is found to expand its distribution range dramatically when the competing species is experimentally removed. इसी को हम कह रहे हैं कॉनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये बैलानस में देखा गया कि वहां पे एक सुपीरियर स्पीसीज थी वार्नेकल बैलानस की जो डोमिनेट करती थी, जब उस स्पीसीज को, और दूसरी जो स्पीसीज थी कैथामेलस की वो इन्फीरियर स्पीसीज थी। सो
जब सुपीरियर स्पीसीज को हटाया गया वहां से तो इन्फीरियर स्पीसीज जो थी वो डोमिनेट कर गई. So a species restricted to a small area due to the presence of competitively superior species is found to expand its distribution range when competing species is experimentally removed. So यहाँ पे इन्होंने ये देखा इन एनसीईआरटी में रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, यहाँ पे एक सुपीरियर स्पीसीज थी पहले, उसका नंबर था ज्यादा है. किसका नंबर था? बेलानस. बेलानस बेलानस का नंबर बहुत ज्यादा था. ठीक है. एंड एक कैथामेलस, कैथामेलस का नंबर ज्यादा था. लेकिन जब बेलानस को यहां से रिमूव किया गया, एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया गया, तो क्या हुआ? कैथामेलस का नंबर जो था वो इंक्रीज कर गया. इसी को हम कह रहे हैं कंपटीशन रिलीज. राइट. दिस इज नोन एज कंपटीशन रिलीज. नाउ the last topic of this chapter is predation. Predation. So in the predation there will be a species होगी एक जिसको नुकसान हो रहा है, उसको हम कहेंगे प्रे. एक स्पीसीज को फायदा होगा, उसको हम कहेंगे प्रेडेटर. प्रीडेटर एग्जाम्पल देते हैं हम प्रेडेटर और प्रे स्पीसीज के. टाइगर प्रे ऑन डियर. स्पैरो seeds. Herbivores plants. Examples हैं. Predators they play important role in ecosystem. Predators का हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. What is the role? Role. Transfer of energy. Transfer of energy in the ecosystem from one trophic level to the another trophic level. Then they will keep the prey population under control. So prey population control में रोल है. राइट. एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में यूज होता है इन्हीं का ही. एंड देन it maintains species diversity. Species diversity को मेंटेन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. More than 10 species of invertebrates they become extinct due to the removal of the. अब देखिए मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर. More than 10 species of invertebrates became extinct due to removal of disaster fish. Disaster fish from American Pacific coast. American
पैसिफिक कोस्ट, राइट। सो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि डिजास्टर फिश जो थी व्हेन दे वर रिमूव्ड, तो ये प्रेडेटर थी, राइट। डिजास्टर फिश इट वाज द नेचुरल प्रेडेटर है ये। सो मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट हो गई बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द डिजास्टर फिश फ्रॉम द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, राइट। दिस इज स्पीसीज डाइवर्सिटी को चेंज कर सकती हैं ये। नाउ प्रे स्पीसीज हैज इवॉल्व्ड, देखते हैं अब हम प्रे स्पीसीज ने इवॉल्व किया है, प्रोटेक्ट किया है अपने आप को। प्रे स्पीसीज हैज चेंज्ड, उन्होंने प्रे स्पीसीज में कुछ एडेप्टेशंस आई हैं अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए। क्या क्या है वो? एक है कैमोफ्लेज, एंड दूसरा है मिमिक्री। दोनों में डिफरेंस क्या है? कैमोफ्लेज में एबिलिटी ऑफ द एनिमल टू ब्लेंड विद द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करती हैं, कलर चेंज कर सकती हैं। मिमिक्री क्या है? रिजेंबलेंस ऑफ द स्पीसीज ऑफ द एनिमल विद अदर स्पीसीज के साथ, अनदर स्पीसीज के साथ ये चेंज कर लेती हैं अपने कलर को ताकि इनका प्रेडेशन जो है कम हो। प्लांट्स में अगर हम एडेप्टेशंस की और बात करें, सो सम ऑफ द प्लांट्स, उनके अंदर फॉर्मेशन हुई है किसकी? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की। ये केमिकल्स हैं, केमिकल्स हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, राइट। जैसे एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं कैलोट्रोपिस का। फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस का जो प्लांट है उसके अंदर ऐसा हुआ है। Many plants they form some other chemicals to protect themselves from grazing animals। तो इसमें कुछ और केमिकल्स हैं जो कि प्लांट्स बनाते हैं, जैसे क्यूनिन है, जैसे स्ट्राइनिन है। These are the chemicals ग्रेजिंग एनिमल से बचाने के लिए ये बनते हैं। इन मोनार्क बटरफ्लाइज, मोनार्क बटरफ्लाइज में देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। इन मोनार्क एडेप्टेशंस में मोनार्क बटरफ्लाई ये क्या करती है? ये बटरफ्लाई इट फॉर्म्स टॉक्सिक सब्सटेंस, फॉर्म टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती है ये। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस इसके अंदर कहां से आता है? इट गेट इट फ्रॉम द पॉइजनस प्लांट्स ऑन विच इट फीड्स, ये फीड करती है फीड ऑन पॉइजनस प्लांट के ऊपर ये फीड करती है। एंड ये सब्सटेंस जो है ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द बटरफ्लाई फ्रॉम प्रेडेशन। सो पॉइजनस सब्सटेंस क्या देता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर से प्रोटेक्शन देता है। अकेशिया एंड कैक्टस, acacia and
कैक्टस, इन प्लांट्स में क्या है, थॉर्न्स हैं, राइट, थॉर्न्स है प्रोटेक्शन के लिए। एंड प्लीज कीप इन माइंड, याद रखिएगा इस चीज को, दी most affected individuals by predation, most affected individuals by predation are plants, because plants they cannot move. प्रेडेशन का सबसे ज्यादा नुकसान प्लांट्स को हुआ है, दे आर दी प्लांट्स ओनली बिकॉज दे कैन नॉट मूव, राइट। सो इसी के साथ विद दिस ये चैप्टर हम फिनिश कर रहे हैं। सो प्लीज रिवाइज कीजिए, PYQs की प्रैक्टिस कीजिए इसकी। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख दीजिएगा। एंड फर्स्ट सेकंड पार्ट भी इसी चैप्टर का अपलोड है इसी चैनल के ऊपर, उसको भी आप देख लीजिएगा। सो with this we conclude today's class. Please do subscribe my channel, like कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। Thank you very much. Thanks for joining.